ہوگا مجھے تو ہم آپ کی بھی انشینٹ بجا دیں گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. زندہ باد پاکستان زندہ باد. جی السلام علیکم. آج کے پروگرام میں 2-3 بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جن کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ کا سیاسی منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے. ایک تو نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی کے بارے میں مسلم لیگ نون نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس سال 2022 ستمبر میں پاکستان واپس آ رہے ہیں. جب سے شہباز شریف پی ڈی ایم کی یونٹی گورنمنٹ آئی ہے تب سے یہی سوال کیا جا رہا تھا اور مسلم لیگ نون کی طرف سے بارہا اس بات کو باور کروایا جاتا تھا کہ بس اب تو نواز شریف اب آئے کہ تب آئے. لیکن اب باقاعدہ طور پہ ایک تاریخ دے دی گئی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں کم از کم نواز شریف کے پاکستان واپس آنے کی تاریخ دی گئی ہو. اس سے پہلے بھی بہت تاریخیں دی جا چکی ہیں. یہی وجہ ہے, یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پہ اب یہ سوال جنریٹ ہوتا ہے کہ اس بار کی جو تاریخ دی گئی ہے نواز شریف کی وطن واپسی کی, تو کیا واقعی وہ اس بار پاکستان واپس آ سکیں گے اور ایسی کیا تبدیلی آ جائے گی؟ کیونکہ کیسز یہاں پر کھلے پڑے ہیں. نواز شریف کی نااہلی کا کیس ہے, کرپشن کے کیس ہیں, ریفرنسز ہیں ان کے اوپر جو کہ عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں, جس پہ اپیلیں بھی پڑی ہوئی ہیں نواز شریف کے, مریم نواز کی. تو کیا وہ پاکستان واپس آ کے عدالتوں کا سامنا کریں گے, جیل جائیں گے, یا ایک طرح سے اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کے مطابق قانون کو, انصاف کو رونتے ہوئے وہ ایک آزاد شہری کی حیثیت سے سیاست کرتے رہیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. دوسری جانب عمران خان, ان کی نااہلی کی باتیں زیادہ شدت کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. تو کیا نواز ان عمران آؤٹ اس قسم کا کوئی فارمولہ تیار ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے, اور اگر ایسا کوئی فارمولہ ہے تو وہ کہاں پر ہے؟ اور عمران خان کی نااہلی کی باتیں جتنی شدت کے ساتھ زور پکڑتی ہیں اتنی ہی شدت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اپنے الیکشن کے بیانیے اور اپنے الیکشن کے جو اقدامات ہیں ان کو لے کے آگے بڑھتی ہے. مثال کے طور پہ آج ہی پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو شہباز شریف کا تجویز کردہ چارٹر آف اکانومی ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ ہمیں COE چارٹر آف الیکشن چاہیے, چارٹر آف اکانومی نہیں چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے آج اعلان کر دیا کہ جی ہم ملک گیر تحریک چلا رہے ہیں حکومت کے خلاف اور الیکشنز لینے کے لیے, جس کا آغاز 19 اگست کو ہوگا اور 10 سپٹمبر تک یہ جلسے پاکستان تحریک انصاف کے چلتے رہیں گے. اس کے علاوہ عمران خان نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ بھی جمع کروا دیے ہیں 9 حلقوں سے, جہاں پر ستمبر کے آخر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ضمنی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کی جو 11 سیٹیں خالی ہوئی تھی ان میں سے 9 پر. تو ستمبر بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے. یہ نواز شریف کی واپسی, عمران خان الیکشن لڑیں گے 9 حلقوں سے ستمبر کے آخر میں, 10 ستمبر تک عمران خان جلسے کریں گے. تو کیا ستمبر پاکستان کی سیاست میں ستم گر ثابت ہوگا؟ کس کے لیے ثابت ہوگا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اسی سوال کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. پروگرام کے فلور کو ڈیبیٹ, ڈسکشن, کوشچن آنسرز کے لیے اوپن کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہے مرکزی سرکردہ رہنما ہے, پنجاب میں اب ان کی حکومت ہے, سید یاور عباس بخاری صاحب. مسلم لیگ نون سے مجھے جوائن کر رہے ہیں مرکزی سرکردہ رہنما ہیں, سینیٹر ہیں رانا مقبول صاحب, اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی مرکزی سرکردہ رہنما, پنجاب میں جب ان کی حکومت تھی تو سینئر پروونشل منسٹر تھے حسن مرتضی صاحب, وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں. رانا مقبول صاحب, پہلا سوال آپ سے, کیا اس بار واقعی نواز شریف آ رہے ہیں؟ آپ لوگ تاریخیں تو بہت دے چکے ہیں, اور اگر آئیں گے تو جیل جائیں گے یا کیا کریں گے؟ نہیں, انشاءاللہ آئیں گے. ابھی وقت تو خیر اس طرح مقرر نہیں ہوا, لیکن آنا تو بات صورت ہے. آج تو اعلان کر اور دیا ہم نا سارے کہ ستمبر میں ہم سارے کے سارے مطلب بے قرار ہیں. اچھا, اور آپ نہیں آپ تک خبر نہیں پہنچی کہ آپ کی سنا پارٹی نے ہے اناؤنس کر دیا ہے؟ کہ ویراں ہے میں کدا خم ساگر اداس ہیں, اچھا تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے. اچھا, ہم تو ان کو مس کرتے ہیں. یاور صاحب کہیں گے ویران ہے جیلیں. ہاں جی, نہیں خیر بہرحال جیل کی تو بات میں نہیں سمجھتا. اگر کوئی قانون سمجھتا ہے یا اپنی کوئی ایک طرح سے کلرڈ انٹرپریٹیشن نہیں کرتا تو وہ کیوں جیل جائیں گے؟ وہ جسٹیفیکیشن ہے ان کی جیل نہ جانے کی. ان کی پروٹیکٹو بیل بھی ان کو مل سکتی ہے, کین اپیئر بیفور دا ٹرائل کورٹ. دیکھیے میری بات سنیں, قانون یہ ہے دی اپیل ان دا ہائی کورٹ
is extension of the trial. आप चूंकि पुलिस सर्विस में रहे हैं नहीं, तो मैं लॉ की बात कर रहा हूँ. आप ये बातें बता सकते हैं. This is an extension of the trial. वहाँ उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी, वो ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी है, तो कानून के मुताबिक वो ट्रायल कोर्ट है. जब वो कंफर्म कर देगी सजा, अल्लाह ना करे, ट्रायल कोर्ट की, तो फिर वो कन्विक्शन कंसिडर होती है. उससे पहले कंसिडर नहीं होती कन्विक्शन. तो इसलिए लॉ का ये बड़ा मतलब एस्टेब्लिश्ड पॉइंट है. एक तो ये है. नवाज शरीफ जेल में तो थे ना जब पाकिस्तान से गए हैं, तो जेल में जबरदस्ती जो मर्जी आप कर रहे हैं उनके साथ किया नहीं आपने. नहीं, अगर आप मानेंगे नहीं, चाहे जिस किस्म का भी अदालत का फैसला हो, ठीक है आपकी अदालत अपील का लगी हुई है, लेकिन आप फैसला अदालत का इंसाफ के फैसला मुताबिक नहीं था. आपकी अपील लगी हुई मैं है ना. आपको अर्ज करता हूँ, मैं देखिए जी, मैं तो पढ़ लिख के करता हूँ ना, मैं तो एक स्टूडेंट को इस चीज का. अगर आप बशीर जज का फैसला पढ़ लें, बुखारी साहब आलिम फाजिल आदमी है, उसका आप पेज नंबर 172 निकालें और पैरा नंबर 2, उसमें वो क्या लिखता है? There is no incriminating evidence against मोहम्मद नवाज शरीफ. सर, द पॉइंट इज कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, नवाज शरीफ का स्टेटस क्या था जब वो पाकिस्तान से बाहर गए थे? वो तो स्टेटस जेल में थे ना, तो जबरदस्ती बनाया हुआ था ना. स्टेटस तो बदल. और एक ह्यूमन सिंपैथी के एलिमेंट पे उनको भेजा गया पाकिस्तान. अगर वो फोरम जो है इंसाफ करने पे आ जाते हैं तो सिचुएशन बदल जाएगी. आप ये कहने का मतलब है कि बशीर की बात कर, मैं बशीर की बात कर लूँ, आप जो भी देखेगा, पहले भी दिन जजों ने देखा कि दसों हंसे उसके ऊपर. जज साहब लिखते हैं जो ट्रायल में जिन कन्विक्शन हुई थी पहले उनको, कि देयर इज नो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस अगेंस्ट मोहम्मद नवाज शरीफ and Maryam Nawaz, and therefore they are not found guilty in section 9(4) of the accountability ordinance. Therefore I acquit them. आप देखें तो सही को पढ़ता तो है नहीं. अब वो कैसे फैसला हुआ आपको पता ही है कि क्या हुआ, फिर वो वहां से क्या लिफाफा आया, आपको सारा पता, सारी बैकग्राउंड का. इसलिए ये सारे फैक्ट्स जो हैं. मेरा सवाल ये है कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से गए थे, उनका स्टेटस एक मुजरिम का था, वो जेल में थे, ह्यूमन सिंपैथी के एलिमेंट मुजरिम आप ना कहें, आप पे मुजरिम ना कहें, ये आप जाती कर रही हैं. मुजरिम नहीं थे वो. मैं कहता हूँ हाई कोर्ट मेरी बात सुने, आपकी अपील लगी हुई, वो एक अलग बात है, बट ये डिबेट बढ़ रही है ना. नहीं, हाई कोर्ट अगर कन्विक्शन होल्ड करेगा, कंफर्म करेगा, तो फिर कन्विक्शन होगी. इसलिए अभी ही इज स्टिल अंडर ट्रायल. आप किसी वकील से पूछ रहे हैं. तो इसी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टिव बेल लेंगे पहले, यानी कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो फिर जेल नहीं जाएंगे. बिल्कुल, इंशाल्लाह जेल नहीं आप लोग जाएंगे. क्यों जाएंगे? इसका मतलब है पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान के निजाम इंसाफ को आप लोग कुछ भी नहीं समझते ना. नहीं, ये क्या बात है? ये मैं कानून की बात कर रहा हूँ, मैं आपको लॉ कोट कर रहा हूँ, मैं उसकी साइटेशन दे रहा हूँ, मैं पैरा नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे एंकर पर्सन हूँ, तो मैं उसका 172 का मैं पेज नंबर दे रहा हूँ. आपका चूंकि एक सियासी बयानिया है, यावर अब्बास साहब जाहिर इसका जवाब देंगे. ठीक है, वो तो उनका हक है, जो मर्जी वो कहें. मैं एक फैक्ट्स की बात आपके सामने रख रहा हूँ. हम भी वकीलों में रहते हैं. मसला ये कि हम भी छोटे मोटे वकील हैं. हमारे अच्छा, एक तो इस बात का जवाब दीजिए, दूसरा नवाज शरीफ की वापसी का खतरा है कोई पीटीआई को? नहीं, हमें कोई खतरा नहीं है, अल्लाह के फजल करम से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहum. देखिए, सबसे बड़ा इशू है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक मुजरिम ठहराया है. जो राणा साहब जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह बात करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करें. हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो एक मुजरिम हैं और वो जेल में थे बहैसियत एक मुजरिम के. उनको इंसानी हमदर्दी के तहत उनको बाहर जाने दिया गया, जिसकी हम लोग मुखालफत करते रहे हैं. क्यों मुखालफत करते रहे? मुझे इस वर्ड पे बहुत एतराज है. उन्होंने वो जेल की सलाखों के डिस्क्वालीफाई किया ना. जेल की सलाखों के पीछे थे. एक झूठे केस में वो ठीक है, जेल की सलाखों के पीछे थे. ऑनरेबल जज साहबान ने उनको डिस्क्वालीफाई. ऑनरेबल भी कहते हैं, फिर कहते हैं. बात सुने ना, मैं इसलिए हमेशा फैसला भी नहीं मानते. मैं इसलिए कहता हूँ कि आप देख लें, ऐसे फैसले मुनीर अहमद ने भी किए, ऐसे फैसले जस्टिस मारूल हक ने भी किए. अच्छा, ऐसे फैसले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अरशाद हसन खान ने भी किए. जवाब दे दें. मेरी बात तो सुन ले. मैं तो एम्पिरिकल एविडेंस देता हूं आपको. सुने ना, जस्टिस कलीम साहब ने भी ऐसे फैसले किए. टाइम यावर साहब. अच्छा, दूसरे मैं ये कहता हूँ, हमारे नजदीक जो सीन था उस टाइम पे, ये सलाखों के पीछे थे. मैं राणा साहब की वो इज्जत की खातिर मैं नहीं कहता हूँ वो लफ्ज के मुजरिम थे, मैं कहता हूँ सलाखों के पीछे थे. उनको जो बाहर भेजा गया वो गलत भेजा गया, नहीं भेजना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाए. मतलब मुझे बताए ना, किसी साजे गामे को आप बाहर भेजते हैं, ये इसमें क्या इतनी बड़ी बात थी? देखिए, वो कहते हैं वो आम मुजरिम थे, वो ये करते हैं, वो करते हैं. भाई, मुल्क का वजीर आजम 3 दफा रह चुका और वो फिर भी जुर्म करे, कन्विक्ट हो जाए, उसको बाहर क्यों भेजेंगे? इधर आप सहूलियात पूरी मुहैया करें. एक बात. नंबर 2, देखिए अभी नून कर क्या रही है, अभी वो बिल्कुल टोटली अपना जो वो नूनियों वाला एक तरीका कार है ना, अभी लॉ को
अमेंड करने की कोशिश करें कि उनको आने में सहूलत हो, ये पार्लियामेंट के ऊपर पूरा डिपेंड कर रहे हैं। इसमें नैब का- पार्लियामेंट इसको अमेंड करे ताकि उनको एक सहूलत हो कौन से आने लॉ में की बात आसानी। कर रहे हैं? नैब के लॉ की बात कर रहे हैं? आई डोंट नो, वो अभी तो मैंने अखबार में ही पढ़ा था हाँ। कि वो नहीं, लेकिन आपको मालूम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप इल्जाम लगा रहे हैं कि नहीं, नून नहीं, अमेंड तो कर रही अखबारों है। में है, वो तो कह रहे हैं, लॉ कौन सा जावेद amend लतीफ कर- तो कह रहे हैं कि हम लोग पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं कि ये अमेंडमेंट लेके आए ताकि नवाज शरीफ की आने में आसानी हो जाए और इनको अरेस्ट नाअहली वाली। नाअहली वाली, और वो खत्म हो जाए, उसका और तो वो इमरान अरेस्ट खान को भी भी, ताकि फायदा वो हो। अरेस्ट भी ना उससे हो। इमरान खान को भी इमरान फायदा खान हो। कन्विक्टेड तो नहीं है ना, जिस दिन कन्विक्टेड हुआ तो उस दिन देखेंगे, वो तो हम उस दिन देखेंगे, लेकिन अभी तक कन्विक्टेड नहीं है। नाअहली का मामला तो शुरू नहीं, होने वाला नाअहली है। जो मर्जी बोलते रहे, जब तक कोई कन्विक्टेड नहीं है वो कन्विक्टेड नहीं है, तो वो आजाद नहीं, है। नाअहली के 62, 63 की बात हो रही है ना कि उसको अमेंड कर दिया जाए। 63 में देखें आप 62 So, या उससे फिर 63 इमरान की खान भी बात तो बच करें, सकते हैं। देखें वो बातें तो सारे कर रहे हैं, ऑपोजिशन तो सारी ये बातें करती है कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे। जब होगा उस दिन फिर हम अगला वो स्टेप तब उठाएंगे कि वो जब तक आपके पास मंजिल करीब नहीं आती तो आप आगे नहीं जा सकते ना, नजर आनी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, आई एम टेलिंग यू दिस टुडे, कुछ भी नहीं होगा ऐसा कि इमरान खान नाअहल होंगे। ये और अगर हो गए? ये सिर्फ खुशफहमी, अगर नहीं होगी तो, अगर हो गए खुदा ना खास्ता तो उसका फिर अगला लाएमल भी है, वो सारी चीजें तैयार वो हैं। क्या है? वो छोड़ दे, अभी देखिए नहीं, बताइए तो सही ना। हम लोग कर रहे क्या आपका हैं? पूरा अमल है या आप लोगों ने कोई नहीं, दिखाना है? नहीं, खतरनाक होके दिखाएंगे? नहीं, हमारा एक पूरा प्लान है। देखिए, जब क्या प्लान? आपके खतरनाक साथ प्लान जब है? आपके साथ अवाम की हमदर्दियां हों, चाहे एक बंदा चीखे लंदन से मारे, यहां से मारे, कराची से मारे, कहीं से बैठ के मारे, उनकी चीखें नहीं सुनी जा रही हैं, सुना क्या जा रहा है। आपने उस दिन का जलसा देखा है जो हॉकी स्टेडियम में हुआ, लाहौर का? मतलब आपने उसके अंदर वाइब्रेंसी देखी थी, लोगों का जोश और जज्बा देखा था। मैं तो वहां पे था ना, हम लोग सीट से बार बार खड़े होकर देखते थे कि यार 5 घंटे से ये लोग जिस तरीके से नारों का जवाब दे रहे हैं, जिस तरीके से बीच में बैठे, इमरान खान की मकबूलियत को ये जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कर ले, कि उसके करीब भी नहीं आ सकते हैं। और अगर अगला इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुआ, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मुझे सीटें लिखवा लेना आप कभी बैठ के, 2/3 हम लेके कितनी जाएंगे। सीटें? 2/3 कितनी सीटें? हम 2/3 लेंगे। 2/3 हम लेके जाएंगे, पंजाब में भी और ठीक। हम इधर भी। पंजाब का हमने जो इनका स्ट्रैंगल रोड था ना, जो कहा जाता था जो लाहौर है वो किला है नून का, वो हमने तोड़ पाश करके रख दिया। ठीक। इस बाई इलेक्शन ने दिखा दिया, ठीक। जबकि इनके दोस्तों ने ये हमें बोला है कि 10-10 हजार वोटें डाली भी गई हैं। ठीक है जी, ये बोले हमें बताइए। और अच्छा। जिस तरीके से इन लोगों ने यहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस से फोन जाके पटवारियों को, जो भी इस्लामाबाद सीडीए में काम कर रहे थे, और मैं हल्फन ये बात कह रहा हूं, इन लोगों ने पटवारियों को यहां से निकाला, जॉब ने अपने बहुत हल्के बड़ा में- इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो ये हुआ है, इसके पास सबूत भी हैं? ये सबूत इन चीजों का नहीं होता उन्होंने है। जब कहा, जिसको जाओ कहा अपने जाता है, नहीं, जिसको खाली जिसको इल्जाम कहा नहीं, जाता ये तो फिर नहीं, इल्जाम नहीं, हुए हैं, ये तो देखिए फिर बात इल्जाम सुनिए, हुए हैं ना। अगर मुझे कोई फोन करे या मेरे भाई को कोई फोन करके बोले कि भाई तुमने जाने अपने हल्के में और वोटें लेके आनी है, मेरा भाई मुझे बता रहा है कि मुझे फोन आई है, ठीक है जी। अभी ऐसी जब बातें हों और गवर्नमेंट अपनी पूरी मशीनरी का इस्तेमाल करे और फिर हमें ये बोले कि भाई तुम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, हमने 5 सीटें जीती, और ये 20 की 20 सीटें तुम पहले कहते थे कि ये इंडिपेंडेंट है, पीटीआई की है नहीं, तो इसलिए हमारे लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो उसके अंदर हम थोड़ा 5 जो सा- 2 सीटें हैं, एक रावलपिंडी वाली और एक लाहौर वाली, इन दोनों के ऊपर हम डिस्प्यूट करते हैं कि ये जिताई गई हैं, जीते नहीं है, जिताई गई हैं। 33 वोट से जो जिताई गई हैं इधर इसको सगीर अच्छा, को, वो हम सबको पता है क्या हुआ है। राना मकबूल साहब, क्या जवाब? मैं इसमें थोड़ा तजिया पेश करूंगा शाह साहब की खिदमत में, आपकी खिदमत में। ये 20 सीटें थी, 20 की 20 इनकी थी, ठीक है, 20 इनकी थी, इसमें से 5 सीटें नून लीग ने जीती। अब अगर आप टोटल वोटों का काउंट देखें, जो मेरे पास पूरा हिसाब है, 10 लाख वोट जो है, 10 लाख वोट, एक वोट गिना गया है, वो पीटीआई ने लिया है, हाँ। और 8.5 लाख नून लीग ने लिया है। अब इन वोटों में इंक्रीज हुई है, जो रजिस्टर्ड हुए थे उसमें 39% इंक्रीज हुई है मुस्लिम लीग के वोटों ने, और 32% जो है पीटीआई के वोटों में। सर ये छोड़ दें सर, नहीं, मैं ये आपको- मैथमेटिक्स मैं छोड़ दें। द आपको- ओनली पॉइंट इज कि आप लोगों ने अपनी आपने टिकट दी, आप लोगों ने नून लीग की टिकट दी उन लोगों को, आपने उनके लिए कैंपेन अच्छा, की, मेरी मरियम बात एक नवाज और ने सुनिए। कैंपेन की, विफाकी काबीना मुस्ताफियों की कैंपेन करती रही, आपकी सीटें एक और थी, बात आप लोग सुनिए। नहीं जीत सके। एक हाँ, सर जहां पे पीटीआई का क्रेडिट है, ड्यू है, दे उनको, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े। इसमें परम्यूटेशन, मुझे हसन साहब की तरफ भी जाना, उनका स्काइप बहाल हो गया है। मैं एक मिसाल सिर्फ दूंगा, जी। और भी हैं, 5 हैं कॉन्स्टिट्यूंसी उसकी खुशाब की, जहाँ आसिफ भा मुस्लिम लीग का वजीर था, वो चूंकि टिकट उसे नहीं मिला, उसके लोग नाराज हो गए, सर, टिकट देते ना उसको। वो इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया, ठीक है जी।
अब वो मुस्लिम लीग के वोट सर अभी वो अलीम खान वाले हल्के में देखे, वहाँ पे अयाज सादिक, साद रफीक, आप लेते रहे, ये सारे लगे रहे, और हम लोगों ने लाहौर का दौर में वो आपकी सीटें थी। 41,000 वोट लिया आसिफ भा ने, नून लीग के कैंडिडेट ने लिया 38,000, टोटल बन गया 79,000। पीटीआई के कैंडिडेट ने लिया 47। सर ये कभी भी ऐसे इलेक्शन में ये काम नहीं आता है। मैं बताता हूँ, मैं हसन साहब की तरफ जरा जाना चाहती हूँ, मुझे आप दोनों जेंटलमैन इजाजत दीजिएगा। हसन मुर्तजा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, एक तो स्काइप आपसे रिक्वेस्ट होगी, मेहरबानी करके स्काइप स्टेबल कर लीजिएगा। मैं पहले भी बार बार सवाल पुट अप करना चाह रही थी लेकिन आवाज थ्रू नहीं हो रही थी। हसन साहब, नवाज शरीफ की वापसी, मुस्लिम लीग नून ने ऐलान कर दिया है कि सितंबर में वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूंकि आप लोग मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी हैं, आप उनके सांझे हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर, तो क्या ये बोझ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उठाएगी? अब आप लोग क्या नवाज शरीफ का बोझ भी उठाएंगे कि वो अगर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तो जेलों में ना जाएं, अदालतों का सामना ना करें, बल्कि एक तरह से वो इलेक्शन की कैंपेन स्टार्ट कर दें? तो इसका बोझ पीपल्स पार्टी किस हद तक उठाएगी? देखें गरीदा, गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब को जिस तरह सजा किया गया या जिस तरह से यहाँ पे सियासी केस ट्रायल होते हैं वो आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं। और मेरे लिए बड़े मोहतरम है बुखारी साहब, उन्होंने जो बातें की जी, उनकी कन्विक्शन की, उनके बाहर जाने की, और ये सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान में पहले होती रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जिसके कारकुनों से लेके क़यादत तक इन अदालतों के विक्टिम है। हम आज भी विक्टिम है। हमारा आज भी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का केस जो है वो अदलिया पे एक सवालिया निशान है, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट में आज भी हमारा वो रिविजिट के लिए पड़ा हुआ है। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, 3 बार वजीर आजम रहे हैं, और उनको बार बार इस तरह मुखातिब करना, जैसे मेरे भाई अभी कह रहे थे जी कि वो गलत हुआ है, सही हुआ है, वो विक्टिम तो है। यार अगर गलत हुआ है तो ये बहुत बड़ा जुल्म है और इस कौम के साथ बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप उसको सिर्फ गलत समझकर लेकिन हसन साहब, जब नवाज शरीफ की नाअहली हुई थी, जब उनको जेल हुई थी, तो आप लोगों ने इस पे खुशियां मनाई थी। पीपल्स पार्टी ने, ये भी तारीख का हिस्सा ही है। लेकिन चले, उसके बाद चीजें बहुत सी तब्दील हो चुकी हैं। देखें, मैंने ना उस वक्त खुशी मनाई थी, ना मैं आज कोई खुशी मना रहा हूं उनकी वापसी की। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, उन्हें इस मुल्क में आना चाहिए, उन्हें इस मुल्क में सियासत करनी चाहिए। लेकिन जो ये कहा जाता है ना जी कि अदालतों ने एक फैसला कर दिया जी, वो ये भाई अदालतों ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का भी अदालती कत्ल किया था। कौन जवाबदेह है उसका? आप अगर नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं दोगे तो कौन जिम्मेदार होगा? तो यानी कि हसन साहब, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए तो बेशक वो जेल ना जाएं, अदालतों का सामना ना करें, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जहां पे उनके इस वक्त भाई मौजूद हैं, वो पीएम हाउस में जाके बैठ जाएं, वो मॉडल टाउन में जाके बैठ जाएं, वो जाती उमरा में जाके बैठ जाएं, एवरीथिंग वुड बी ओके। सिस्टम ऐसे चलेगा। तो सुन ले, मैं कह रहा हूं जी कि वो बेशक उन्हें अदालतों को फेस करना चाहिए। अच्छा। उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था, उन्हें यहाँ पे फेस करना चाहिए था। आज आपके मुल्क के अंदर, जैसे अभी मेरे भाई कह रहे थे इमरान खान नाअहल नहीं होंगे, तो भाई आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो है ही नाअहल, तो उन्होंने दोबारा नाअहल क्यों होना है? वो नहीं होंगे। आप तो अदालतों के फैसले भी आप करने शुरू कर दिए आपने। हसन साहब, बाकी बातें अपनी जगह, लेकिन इस किस्म के अल्फाज मेरे सामने अदा मत किया करें। मैं रिएक्ट करूंगा और फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं दोबारा ये अल्फाज अदा किए अगर इमरान खान साहब के बारे में, तो आपकी लीडरशिप के बारे में मैं वो अल्फाज टेलीविजन पे करूंगा कि आप फिर अफसोस होगा। आप भाई हैं तो तमीज के दायरे में रह के बात करें इमरान खान के बारे में नेशनल शो के ऊपर। आप पंजाब असेंबली के अंदर सराइकी में तकरीर नहीं कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके अपने कपड़ों में रह के बात करें। इमरान खान के बारे में गलत बात की तो फिर मैं आपको सुनाऊंगा वापस, फिर मैं भाईचारा नहीं देखूंगा। अच्छा हसन साहब, बुखारी साहब नहीं कोई बुखारी साहब नहीं, ये बात करेंगे कोई बुखारी साहब नहीं होगा। अच्छा उनको जवाब, हसन साहब को जवाब तो देने देना। हसन साहब, आपने भी किसी के बारे में गलत बात नहीं करनी। आप भी किसी को ये नहीं कहेंगे कि चोर है, फलां है। आपने भी अपने कपड़ों में रह के बात करनी है। ये सारों के लिए होता है। आप जिसको मर्जी चोर कहें, जिसको मर्जी गाली दे लें, आपको अगर कोई बात आपकी रिपीट कर दे तो आप उसको तमीज सिखाना शुरू कर दें। इस तरह नहीं होगा। आपने अगर हमारी क़यादत का एहतराम करना है, मैं तो करता ही नहीं किसी की क़यादत के साथ ज्यादती।
मैं तो सिर्फ उस वक्त करता हूं जब आप करते हैं। नहीं ऐसी बात ही मैंने असेंबली में बहुत दफा आपकी तकरीरें सुनी है, तो वो अभी आप ऐसे बात ना करें कि आप नहीं करते हैं, आप करते हैं। लेकिन ये है कि अगर हम लोग ये बात तय कर लें कि हमने किसी के बारे में गैर इखलाकी बात नहीं करनी है, जो मैं नहीं करता होता हूं, लेकिन अगर आप ऐसी बात करेंगे फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा। नहीं, मेरे प्रोग्राम पे किसी की जातियात के हवाले से किसी की भी सबका एहतराम है, चाहे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो। जी हसन साहब, नवाज शरीफ के लिए कौन सी जबान इस्तेमाल की है? जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, मैंने तो वही बात की है। वो उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ मुजरिम है। राना मकबूल ने एतराज किया, उन्होंने कहा चलें जेल की सलाखों के पीछे। आपने कहा कि इमरान खान नाअहल हैं। ये वैसे पार्लिमानी अल्फाज हैं नहीं कि मुजरिम और नाअहल। लीडरशिप के बारे में ना हसन भाई का ना मेरा ये कद काट है कि हम लोग एक बंदा नाअहल नहीं है और आप वो नाअहल बोल रहे हैं। अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर मुझे मजबूरन फिर मुझे वो अल्फाज अदा करने पड़ेंगे जो इनकी लीडरशिप के बारे में आम आवाम कहती है, मुझे करना पड़ेगा। अभी टॉक शो पे ना इमरान खान साहब बैठे हैं, ना नवाज शरीफ बैठे हैं, ना आसिफ जरदारी बैठे हैं। हम लोग आपस में भाइयों की तरह बैठ के अवाम को हम वो अवेयर कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। तो हम ये अल्फाज जब अदा करेंगे तो फिर देखिए मेरी एक पार्टी के वर्कर की हैसियत से मेरी मजबूरी होगी कि फिर मैं जवाब दूं। ठीक है हसन साहब, आपका जवाब मैं वापस आके मुकम्मल लेती हूँ। एक ब्रेक का वक्त हो गया, वापस आते हैं। हसन मुर्तजा साहब का मुकम्मल जवाब लेते हैं। सेंटर राना मकबूल साहब, सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम में आज सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, सेंटर राना मकबूल साहब और हसन मुर्तजा साहब। हसन साहब, आप जवाब मुकम्मल कर लें, फिर हम जरा आगे बढ़ेंगे। COE चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ इलेक्शन, इस पे बात करेंगे, लेकिन आप अपना जवाब मुकम्मल कर लीजिए। फरीदा, गुजारिश ये है कि इस मुल्क में हमेशा सियासत के दरवाजे बंद किए जाते हैं। आप क्यादतों को बाहर जाने पर मजबूर करते हैं। ठीक, आप अगर कोई डिक्टेटर यहाँ पर किसी के साथ, किसी कैदी के साथ मुआहदा करके उसे बाहर भेजता है, तो कैदी के साथ कौन सा मुआहदा हो सकता है? वो तो सलाखों के पीछे है। अगर आप उसे उठा के बाहर फेंक दें और उसे कहें कि तुम मुआहदे के तहत 10 साल तक इस मुल्क में सियासत नहीं करोगे, तो ये कहाँ का इंसाफ है? मैं नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के बिल्कुल हक में नहीं हूं, या मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनके साथ वो ठीक किया, उन्होंने बाहर चले गए। उन्हें यहाँ रह के इस फाशिज्म का मुकाबला करना चाहिए था। उन्हें अगर आज सजा हुई है तो कोई नहीं, कल बरी भी होंगे। जिस तरह आप दूसरी तरफ से अभी बुखारी साहब ने कहा कि नाअहल नहीं होंगे इमरान खान साहब किसी अदालत से, क्या अदालतों के फैसले जो हैं वो इन्होंने लिखने शुरू कर दिए हैं? अगर उन पे फॉरेन फंडिंग साबित होती है, अगर उनके अमेरिकन नेशनल से पैसे लिए साबित होते हैं, तो क्या उनको नाअहल नहीं होना चाहिए? किस तरह ये कह सकते हैं कि कल को ये फैसला आएगा? तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अदलिया पर खुद जानिबदारी का इल्जाम लगाते हैं और फिर दूसरी तरफ कह देते हैं कि जी वो तो बाहर चले गए, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। भाई आप हुकूमत थे, आपकी ECL की लिस्ट पे थे, आपने उन्हें बाहर क्यों जाने दिया? उनको रोकते। कभी अदालत पे इल्जाम लगा दिया जाता है, कभी किसी पर। जो खुद जिम्मेदार है वो उस चीज को नहीं मानते। ठीक, तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है। जी ठीक है हसन साहब, जवाब आपका मुकम्मल हो गया। यावर साहब, अगर आप इसका कोई जवाब देना चाहें तो जरूर दीजिए। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि थोड़ा सा मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ने कहा कि अभी तक भुट्टो शहीद का केस हम लोग उसके जवाब के तलबगार हैं। तो भाई 2 दफा हुकूमत में आ चुके हैं। बेनजीर की शहादत इतनी, और इनकी अपनी पार्टी जिसके ऊपर इल्जाम लगाती है वो अपनी जगह है, लेकिन उनकी शहादत की कोई इन्वेस्टिगेशन इन लोगों ने बिल्कुल नहीं करवाई। भुट्टो साहब के केस को इन लोगों ने परसू बिल्कुल नहीं किया। इनका मकसद है नाम का इस्तेमाल करना। ये लोग सिर्फ शहादतों को इस्तेमाल करना जानते हैं। कोई शक नहीं है भुट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई, ज्यादती का जवाब लेना PDM से। ज्यादातर तो पार्टियां वही हैं जो भुट्टो साहब की फांसी के बाद जिन्हें मिठाइयां बांटी, उन्हीं के साथ ये लोग बैठे हुए, कातलों के साथ ये बैठे हुए। लेकिन इनको एक बात का ख्याल करना चाहिए कि जब भी ये बातें करते हैं, ये बताएं कि इन लोगों ने अपने जमाने में क्या किया। भुट्टो साहब की शहादत के मामले में, उस केस के मामले में, और बेनजीर की शहादत के मामले में ने किया क्या? जीरो।
सिर्फ टीवी पे आके बातें करना कि हमारी पार्टी ये, हमारी पार्टी वो, हर पार्टी फेस करती है। आया पीटीआई के लोगों के साथ जुल्म राना सनाउल्लाह ने नहीं किया? इनने बोला कि जुल्म किया है, औरतों के ऊपर इन लोगों ने डंडे चलाए, कोई इन लोगों ने बोला कि जुल्म किया, लोगों की दीवारों पे फैलांग के औरतों को थप्पड़ मारे हैं। यास्मीन राशिद के साथ जो कुछ किया, जो कुछ मॉडल टाउन में हुआ, कभी इनने बोला है हसन मुर्तजा ने कि ये ज्यादती हुई थी? बोले ना। और फिर अगर ये बातें करते हैं इस किस्म की, तो ये फिर जुर्रत पैदा करें और भुट्टो साहब के केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं और बेनजीर की शहादत की इन्वेस्टिगेशन करके जो भी उसके अंदर मुजरिम है उसको सामने लाएं, किसी को बचाएं। यहाँ पे हल्की सी ब्रेक लेते हैं, टाइम आपका ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ कमेंट शायद करना चाह रहे हैं हसन साहब। हसन साहब क्विकली कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। ये है शायद इनको पता कोई नहीं है कि बेनजीर भुट्टो साहिबा का जो चालान था वो सबमिट हो चुका था कोर्ट में और वो कोर्ट ने उसका डिसीजन भी दे दिया हुआ है। अब अगर अदालत हमारे केस में फैसला दे दे तो उस पे हम क्या करें, कौन सी इन्वेस्टिगेशन करें? और भुट्टो साहब का जो, क्या हम भुट्टो साहब के केस में मिठाइयां बांटने वालों को सजाए मौत कर देते अपने अदवार में? हमने हुकूमत की, हमने भुट्टो शहीद का केस दोबारा सुप्रीम कोर्ट में रिविजिट के लिए किया कि इसको रिविजिट करें, ये फैसला गलत है। किस तरह ये कह रहे हैं कि हम शहादतों को इस्तेमाल करते हैं? आपकी जिसको आज आप कह रहे हैं बड़े जोश के साथ कि आपने उस वाकया को कंडेम नहीं किया, तो मैंने बजाते खुद उस चीज को, उसकी पुरजोर मजम्मत की कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए, किसी सूरत में भी नहीं होना जांच चाहिए। करें कि ऐसे सीनियर मिनिस्टर को निकाल दिया जाए। आप पार्टी के एक हिस्सा है ना, गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो आपको चाहिए कि ऐसा इंसान जो चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता है, वो ख्याल नहीं रखता है, तो आप लोग डिमांड करें कि ऐसे बंदे को हटाएं। कोई पीपल्स पार्टी के जो ज्यादा कल्चर्ड पार्टी है, मेरे नजदीक कल्चर्ड पार्टी है, तो उसके किसी बंदे को इंटीरियर मिनिस्टर लगा दें। बुखारी साहब, अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, अब आप सारी चीजें सीधी कर लेना ना। अब आपके पास मौका है। हम फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर की बात कर रहे हैं हसन भाई। पास मौका है ना, आप उस इंटीरियर मिनिस्टर को आप चौक में ला के सजाए मौत कर देना ना। आप तो, आपका तो वजीर आला कह रहे हैं ना कि मैं सजाए मौत दूंगा और हम कोर्ट के थ्रू जाएंगे, तो मैं उसको उम्र कैद में तब्दील कर दूंगा। आपके पास ये ताकत है, आप कर सकते हैं। मैं वाकया नाकाम था, मैं उसलिए आपसे और कौम से माजरत खा हूं। ठीक है हसन साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ इलेक्शन जी सर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ इन चीज़ों का। हमारे लोग तो पढ़ते ही नहीं है किसी शहर को, वैसे जो सुन लिया उसी को चलते रहते हैं। मॉडल टाउन केस की बात हुई है, भाई मॉडल टाउन केस को आपने स्टडी किया है? जो कातिल थे जिन्होंने किया, 9 पुलिस अफसर पकड़े गए, चालान हुआ उनका, उनके ऊपर 80 गवाह पेश हुए। जब फैसला होने वाला था तो पैट ने, तहरुल कादरी साहब की जमात ने एक इस्तगासा आके कर दिया और इस्तगासा में वो मुल्ज़िम दे दिए जो उसमें थे ही नहीं एफआईआर में। अब इस्तगासा के गवाह होने शुरू हो गए। कानून ये कहता है कि अगर कोई केस अंडर ट्रायल है और उसके मौजूदगी में इस्तगासा आ जाए तो पहले इस्तगासा की हियरिंग होगी, ये कानून है। उस जज ने उनकी हियरिंग शुरू कर दी। जब और स्टोरी जो थी, जो पहली एफआईआर की स्टोरी थी जो इन्होंने दी थी, जिसकी सपोर्ट कर रहे थे, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गई। मुल्ज़िम भी बदल दिए, स्टोरी भी बदल दी। और जब वो पेश हुए तो 64 गवाह हुए इनके इस्तगासा में। और जज साहब ने ये देखा भी आपने किया क्या है, आप किसी के कहने पे लोगों को, बेगुनाह को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मैं कैसे आपकी बात मान लूं? उन्होंने बात सुने, अब उन्होंने उन लोगों को तलब नहीं किया, यानी दैट अमाउंट्स टू एक्विटल कानून में। जो जिनकी बात ये कर रहे हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं, यानी मियां नवाज शरीफ का नाम था, आपने सुने कराया, वो चौधरी निसार का नाम था, नहीं, बात ये है कि अपने केस को झूठ बोल के इन्होंने खुद खराब किया। अब किसने इसको कहा था कि जब ट्रायल हो रहा था इस्तगासा में आ जाए आप? ऐसे ये दे आर प्लेइंग टू द गैलरी इस केस में।
ज्यादती उन लोगों के सियासी साथ हुई बयानियां खेल है, रहे हैं ज्यादती इसके उन लोगों ऊपर। के साथ हुई है जो मजलूम है, ना इन्होंने को कॉम्पनसेट किया है। और पंजाब की गवर्नमेंट तो कोशिश करती रही है कि जो आप इनको कॉम्पनसेटेड होने दें, ठीक। वो कहें जी हमें कॉम्पनसेशन बाहर के मुल्क में दें। यानी कि फिर तो राणा बात मकबूल- करने वाली यानी कि राणा मकबूल साहब का एक जो नटशल में जो बात है वो उनका ये है कि आप जिस तरह पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगा रहे थे ना कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो का केस परस्यू नहीं किया, तो इसी तरह से पीटीआई ने अपने दौर में मॉडल टाउन का केस परस्यू नहीं किया, जिसपे कादिर साहब ने नहीं, आपसे किसी को शिकवा भी अब आप किया। देख लें, अब वो हाई कोर्ट में है ना, अब आप देख लें कोई इनकी हाथ चीज अभी आएगी। हम लोग- आप उन हम लोग उस मुल्जिमों केस में, को- शादी मेरी मैं बात मुकम्मल जी, कर दूं, जी, आप उन मुल्जिमों को जिनको आप चाहते हैं आपके पॉलिटिकल राइवल्स, उनको इस केस में सजा नहीं दिलवा सकते। उसकी वजह यह है कि कोर्ट ने उनको बेगुनाह करार दे दिया है। ठीक है। बात खत्म हो गई। ठीक है। अब आए जी औरतों की बात मैं करूं। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात कर लूं कि हम उस केस को परसू कर रहे हैं और उसको हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब तो पंजाब गवर्नमेंट आप हाँ, करें, वो आप हम कर करें। रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। अब हमारा ये असूली फैसला है कि मॉडल टाउन के केस को हम उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और उसको हम ऐसे रहने नहीं देंगे। नहीं वो बिल्कुल ठीक है। पहले नहीं, वो तो मुझे जरा राणा साहब की जो discussion बात को है थोड़ा वो सा आगे लेके पहले चलना है। कंपनसेशन तो करें उन गरीबों को। नहीं, इंशाल्लाह वो भी 2 करेंगे। करोड़ रुपया दे वो ना। भी करेंगे। अब वो पंजाब गवर्नमेंट तो दे रही थी उनको, लेकिन वो कादरी साहब ने नहीं लेने नहीं, दिया। वो मसला क्या था उस नहीं, टाइम पे? मसला- वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से इसलिए नहीं लेना चाह रहे थे कि जो चीफ मिनिस्टर साहब थे शहबाज शरीफ साहब, उसी के ऊपर वो डायरेक्ट इल्जाम लगाते थे। अब आप लोग तो वो compensate कहते थे- करें। चलो खैर वो अब आप लोग compensate इंशाल्लाह। करें। मैं औरतों की बात थोड़ी सी बात कर लूं। देखो हम सब जख्मी हैं कि जो सलूक इन्होंने मरियम के साथ किया है, वो बाप बीमार इसलिए हुआ था, उसको 10 सेल में रखा, पहले गिरफ्तार किया, फिर उसकी मौजूदगी में जेल से जाके गिरफ्तार किया जब उनको मिलने के लिए गई थी। ये शाह साहब ठीक है, बड़े नेक आदमी हैं, ये भी इस लोग बात पे तड़पे होंगे कि इन्होंने क्या ये जुल्म किया है। और जो दवाइयां उसकी बंद कर दी, चारपाई उसकी छीन ली। मियां नवाज साहब जब बीमार हुए हैं तो पता ही उनको क्या दिया है। जो उनकी जो सेहत है, वहां जाके जुडिशियल वो जो फिजिकल रिमांड जो है, पहले जुडिशियल कर लिया, फिर आप सबका प्राइम मिनिस्टर का दोबारा फिजिकल रिमांड ले रहे हैं। को खुदा का खौफ का। अब उनकी सेहत जो गिरी है, क्या दे दी है, कोई माइल्ड आर्सेनिक दे दिया है, कुछ दिया होगा। हाँ। जैसे इमरान रियाज को जो एंकर है उसको जब अभी अब इमरान रियाज ठीक है, बहुत डियर है। अब शायद प्राइम टेस्ट रिजल्ट साहब प्राइम मिनिस्टर को तो नाम मिलाए ना आप। नहीं सुने, इमरान रियाज बहुत भागा अच्छा फिर रहा है इमरान रियाज, क्या बातें करते हैं। लेकिन देखिए उसको दुबई नहीं, अबू धाबी नहीं जाने दिया। देखिए मेरे लिए सब बराबर है। अगर उसको किया तो वो भी गलत है, बस, thank you। और जो प्राइम मिनिस्टर मुझे को थोड़ा किया सा मियां आगे- साहब को, वो भी बहुत गलत है। जुल्म। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन कंटिन्यू है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग कहते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी, सीओई चार्टर ऑफ इकोनॉमी। पीटीआई कहती है कि नो वी वांट सीओई चार्टर ऑफ इलेक्शंस। आपका तो बैसाखी मईशत रिजेक्ट कर दिया टोटल। तो कोई बात नहीं, वो तो हर चीज रिजेक्ट इलेक्शन करते की तरफ तो चले वो जाएं। हर चीज रिजेक्ट करते हैं, जो भी आप कहेंगे वो रिजेक्ट करेंगे। अब वो तहरीक क्योंकि- चलाने लगे हैं, हाँ, इलेक्शन बिल्कुल। करवाने के लिए। बिस्मिल्लाह चलाएं, क्यों नहीं। तहरीकें पॉलिटिकल चलती रहती हैं, लोग तहरीकों को फेस वेल सेड, ये बड़ी अच्छी देखिए ये एक आप लोग जलसे करके इलेक्शन ले ये लेंगे। political process है। एक पॉलिटिशियन, एक जो ट्रू पॉलिटिशियन होते हैं ना, गो ये ब्यूरोक्रेट रहे, लेकिन ट्रू पॉलिटिशियंस वाली बात की है कि जलसे करने की हर किसी को बिल्कुल। आजादी है। जैसे हम लोगों ने आजादी दी थी, हमने तो कोई नहीं रोका This था। will be followed by public meeting of the real leader. मरियम नवाज की पब्लिक मीटिंग शुरू हो जाएंगी, आप देखेंगे। और ये अच्छी बात है, मैं तो इनकरेज ठीक करता हूं, है। बिल्कुल आए। यानी कि इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। हम लोग उधर से इमरान खान, इधर से इनके मरियम ऊपर- नवाज, वहां से बिलावल भुट्टो अगर फरीदा, करना हम शुरू कर उनके ऊपर वो प्रेशर डालेंगे जो प्रेशर ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह। जल्सों के जरिए, इंशाल्लाह। जल्सों के जरिए वो या तो कोई ठीक और है। प्रेशर इंशाल्लाह डालेंगे। इंशाल्लाह। जो चीज है ना जी अंग्रेजा, जो चीज दरमियान में है ना, वो थी डिटीरियोरेटिंग इकोनॉमी। वो अब संभलती जा रही है। डॉलर नीचे आ रहा है, नहीं, वो संभलती स्टॉक जा रही मार्केट है। बेहतर हो गई The है, things are getting IMF से repaired. लोन मिल रहा The है। things are getting repaired. Okay. तो आप देखेंगे सिचुएशन बदलेगी। तो अच्छा है ना, आईएमएफ से लोन नहीं, लेके आप लोग इलेक्शंस में हम चले तो जाए खुश हैं, ना। गरीबों की जिंदगी आसान हो। देखें 100 शादी जो मरियम नवाज ने आपको टफ टाइम देना ना, आप भूल जाएंगे। मैं अब आपको मैं बता रहा हूँ वो जमाने गए। नहीं, वो जमाने गए हैं। वो आ रहे हैं मरियम नवाज जमाने। की फॉलोइंग जो है ना, कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ से ज्यादा है, लेकिन आपको बता रहा हूँ वो वक्त भी बदल चुके हैं। ये आपको इस बाई इलेक्शन ने बता दिया है। ठीक। मरियम निकली थी, लेकिन रिस्पॉन्स यहाँ बाई इलेक्शन अपने क्या आप को कोविड सर, करके अंदर अभी होगा। बाई इलेक्शंस आ रहे हैं कर रही ना, है। वो बता देगा कि दूध का दूध, पानी का बिल्कुल, पानी, कौन बिल्कुल, कितने इस वक्त बिल्कुल। पानी में है। वो तो वक्त नून, बताएगा पीटीआई, आपको। पीपल्स जी, पार्टी वो कहाँ वक्त पर है। बताएगा। लास्ट कमेंट आपका हसन मुर्तजा साहब, सीओई चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए या चार्टर ऑफ इलेक्शन होना चाहिए?
फिलहाल तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए जी। इस मुल्क की इकोनॉमी को बेशक वो दुरुस्त सिमत पे चल पड़ी है, लेकिन अभी भी जरूरत है कि उस पे काम किया जाए और इनको भी उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझते हैं कि कल को हमारी हुकूमत 2/3 के साथ आ रही है तो वो तभी चलनी है जब इकोनॉमी बेहतर होगी, क्योंकि इन्होंने तो जो पहले हाल किया था अब भी यही हाल करने का इरादा है। मुझे बता दे हमने क्या किया था, एक सर, ये सेक्टर डिबेट बता दे, लंबी हो एक सेक्टर जाएगी। बता दे। सर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, डिबेट लंबी हो जाएगी, इकोनॉमी पे नेक्स्ट प्रोग्राम कर लेंगे। हसन साहब बिल्कुल लास्ट कमेंट आपका प्लीज। इससे क्या ज्यादा शौक है ना तो मैं इधर ही हूँ, इधर आ जाए मैं और ये रात को बैठ के आज कहाँ पे ठहरे में बता दे, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, गुड प्रपोजल। मैं आ रहा हूँ, आ जाए। चलिए हम प्रोग्राम के बाद डिसाइड कर लेते हैं, अब सारे मिलकर खाना खाते हैं और वहां पे इकोनॉमी पे डिस्कशन कर लेते हैं। इकोनॉमी कम से कम इतनी बेहतर होगी कि डॉलर नीचे आ गया तो खाना हम अफोर्ड कर सकते हैं कम से कम। हसन मुर्तजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सेंट्राना मकबूल साहब आपका भी शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।